Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to our legal political show where we will be discussing political, legal and social issues. And as usual, we're going to have our guests here who will be also participating in this live discussion. Last week हमारा program बड़ा interesting था. We had a number of views, number of people called us in this hate crime. तो again आप हमारे program को watch करें. अगर आपका कोई issue है तो आप हमें contact करें और after the program भी आप हमारी details ले सकते हैं. Number of people ने हमें contact करा था with this hate crime जो जिस पे हमने discuss करा था last week with our guest Miriam Khan. She was here along with my colleague Rashid Mimousa. But today we are going to be discussing some of these issues and also we'll be discussing some of the issues regarding the Muslim population in this country. So पहले तो मैं welcome करता हूँ अपने guest को Rashid Mimousa साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर. And Ali Raza साहब. अस्सलाम वालेकुम. Welcome to the program. Again, अपने व्यूज़ को बताते चलते. So अगर आपके पास कोई question है regarding political, legal या आपको कोई general कोई question है, then please आप हमें contact करें. हमारे details आएंगी screen पे. telephone number जो screen पे number होता है वो number होता है जिस पे आप call live कर सकते हैं. और इसके अलावा अगर आप हमसे discussion चाहते हैं to discuss any issues off air, then please control rooms आप हमारी details ले सकते हैं. We'll be more than happy to do so. तो पहले तो ये discuss करते हैं Ali Raza साहब. I just want to talk generally on the back of the program. We discussed last week hate crime. So Ali Raza Sahab, we did discuss last time about Islamophobia. You were against, Raisa B, we had a very live debate discussing some of the issues. It's what the concerns I have at the moment, before we go into the Islamophobia. It's what your alarming news is what जो आप देखें that we have a Muslim population in this country. There is about ethnic minorities that are around about 5 to 6 million is what there, or approximately 5 to 6 million. तो आप उसमें से 5% Muslim population है. इनके prisons में देखें क्या हाल है. It's a big proportion. इस पे थोड़ा सा बताएं. You're right. There is we have 5% of the population. 44% are in high maximum prisons, and that's our Muslims. Yeah. So you have high maximum prison बताए. तो what we're looking at to the position is that 5% of the population. 44% is the figures, statistics of the Muslim population in the jails. The high maximum ones, high which maximum. is the serious ones. The serious one. I mean, that's a big issue. Absolutely. तो आप ये देखिए, country में हमारे पास population इतनी कम होने के बावजूद, तो we're holding somewhere in the region 44%, which is unbelievable. तो इसके reasons आप बताइए, crime is what क्यों चले गए, what's happening? बेशुमार फैक्टर्स है मगर थोड़ा सा आप ये बताएं इतने मुस्लिम पॉपुलेशन क्यों है? I would say the maximum of people in as the 44% fundamental extremist Muslims who are in there. Extremist Muslim people you're talking about. What about the general crime? What about them figures? Is it और double होगा? Is it a bit more higher than this? In the normal population it's probably much higher. So Rashid साहब आपने भी बात सुनी है, figures सुने 44% out of 5% on a maximum high prison. तो ये तो उन्होंने अभी mention करा है जिस पे हम discuss कर रहे हैं. तो high जो dangerous जो criminals हैं उनके बारे में बताएं जो mention अभी करा है. तो आप क्या समझते हैं? Why is this the reason? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. इसके पीछे बहुत सी reasons हैं जिसकी वजह से unemployment, domestic violence और हमारे लीडर की तरफ से कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं है जो कि हमारी एशियन कम्युनिटी को मिले. कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं बनाए गए जिसकी वजह से हमारा रुझान ज़्यादातर क्रिमिनल लोगों के साथ रहता है और उसकी वजह से लोग क्रिमिनल हो जाते हैं. बहुत ज़्यादा वजूहात है जिसकी वजह से क्राइम रेशो बढ़ रही है. तो हमारी जो कम्युनिटी लीडर है इस पे उनको तवज्जो देनी चाहिए. आपसे ये मैं बात करूंगा कम्युनिटी लीडरशिप अपने व्यूज़ को बताते चलते. आप इस वक्त डिबेट सुन रहे हैं, डिस्कशन इस वक्त जो मुस्लिम पॉपुलेशन है यूके में अभी अपने फिगर सुने थे 5% हमारी पॉपुलेशन है उसमें से 44% आर इन हाई सिक्योरिटी प्रिजन जिसमें मतलब वो अभी जिस तरह अली रज़ा ने बताया था that these are very serious criminals. आपने अली रज़ा जो मेंशन करा था these are people you said into the high security prisons. आप मेंशन कर these are people into acts of terrorism. I would say extremism. Yes. इसकी बात करें right. तो आपसे मैं क्वेश्चन ये करता हूँ जो ये प्रॉब्लम ये था अभी राशिद साहब ने मेंशन करा था इस पे हमारी कम्युनिटी लीडरशिप और प्रॉब्लम इज इट टू डू विद रेडिकलाइजेशन ये रेडिकलाइजेशन का जो इशू है. We have a problem. There's no doubt about it. We have a problem with extremism in the world as well as in the UK.
So you're saying that our youth and our people, जो हमारे majority लोग हैं, वो radicalized हो रहे? I mean, is that what you they're think? radicalized on the internet, and Right. you know, certain sermons, certain mosques, which I don't really want Sure, to name. of course. So I'm name नहीं करना चाहते. Yes. और अगर आपके पास है, I'd rather not you do that. Yeah. But तो आप कहते this radicalization is on an increase. Definitely. Of course, there are no alarming figures. Absolutely. Absolutely. तो मतलब इसका एक कहने का मकसद है जो इस वक्त मिडल ईस्ट में हो रहा है, जो पाकिस्तान में हो रहा है, around the world, उसका effect जो इस वक्त आप कह रहे हैं, some scholars you mentioned like touched on, तो ये लोग इनको जाके brainwashing करें basically. Yeah. I mean, if you look at a lot of the individuals and when they've done research on them, a lot of them have, you know, psychological problems, and a lot of them are depressed, and they turn towards that kind of extremism. So is it because इनके issues are because depression आप कह रहे हैं because इनके mind ही set नहीं I है? would say they're more vulnerable, because if you look at blowing yourself up or killing innocent people, you have to have some kind of psychological problem to be affiliated to that. ठीक है. वैसे अब जो इस जो recent जो आपको पता है मैनचेस्टर में जो कुछ बंदे थे, वो ग्रेजुएट थे, सॉफिन यूनिवर्सिटी में था वो बंदा जिसने जाके मैनचेस्टर में करा था, जो डिप्लोरेबल था. Then why is this happening? जो पढ़े लिखे भी इनमें जा रहे हैं, you know, educated people. What is the reason for that? इसकी रीज़न है जैसे कि अली साहब ने बताया, ब्रेन वाश कोई भी हो, एजुकेटेड हो या अनएजुकेटेड हो, उसका ब्रेन वाश हो सकता है. तो मोस्टली हमारे स्कॉलरशिप जो कि ना ब्रेन वाश पे अहम किरदार अदा करते हैं, उनको भी इस चीज़ पे गौर करना चाहिए. जब भी कोई डिबेट हो, जब भी कोई स्पीच हो, तो उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करें ताकि दूसरे बंदे को या गैर मुस्लिम को भी उस चीज़ की समझ आए. जी, मगर इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है रेडिकलाइजेशन स्पीच से, इन चीज़ों से उनका ये बिलीफ है जिसकी वजह से वो ये काम कर रही. ये स्पीच सुन के तो वो बदल रहे हैं, मगर उनका एक यकीन है, दिस इज ऑन अ बिलीव दैट बिहेव इन दिस वे. सो हाउ वी कैन काउंटर दैट? इसमें देखो इनोसेंट जो है ना वो इसमें ट्रैप हो रही. What do you think we should be doing then? What you have is, look, there's no doubt about it. You had the British, you had the Americans go into Afghanistan. They went into Iraq. There has been atrocities. Yes. Now, these people who radicalize people show photos of children being killed, show extremist behavior, and an individual will look at that and say, you know, these are Muslim brothers. We need to do something about this, and that's how it comes about. Well, Tika, I understand what they may be thinking, but do you not think this is a wrong way of dealing with it? Because you don't ये किसी की life लेना तो नहीं है ना. But this is the angle that they use. But how can anybody feel justification that अगर उन्होंने वहाँ पे किसी की kill somebody, so you should kill innocent people? What is the logic to that? Rush, I mean that उनका जो ये reasoning है बिल्कुल ही जितने भी सुसाइडर आप उनको मुसलमान नहीं कह सकते. कोई भी मुसलमान एक इंसान को ख़त्म नहीं कर सकता. तो ये इनका ब्रेन वाश है. ये एक माफिया है जो वो हमारी कम्युनिटी को ब्रेन वाश करके ऐसे कामों के लिए तैयार कर लेता है, जिसकी वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में बदनाम हो जाते हैं. Of course. जी, चलें आपसे ये बात अभी इसी पे रखते हैं because it's very important. 5% of population, ये तो हमने serious उसमें बताएं. What about the other jails में जो जिसमें fraud है, the other kind of crimes? You're talking about very high percentage, Ali Raza. Yeah, there is. There definitely is a problem. Yeah, because it's meant to. When it comes to law and order, definitely. So our prisons, the prisons UK, overwhelmingly has been filled in by ethnic minorities, Muslim in particular. I mean, that is alarming. That is staggering. It is alarming, but I mean, I think if we did do statistics, I would say if you were a Muslim person going to court, the chances are that you will be found guilty. Of course, I'm going to discuss that one. Yeah. If you're a Muslim person, you're going to be found guilty. We'll discuss that. Yeah. Right, साहब, इस वक्त ये बताएं, आपको भी बताएं, इस वक्त foreign जो countries हैं, some countries who are behind a lot of these radicalization, जो support कर रही हैं behind the scenes. I mean, governments are aware of this. उनके ऊपर नहीं करना चाहिए sanctions, जिस वक्त जो countries involved होती हैं. What do you think on that? बिल्कुल गवर्नमेंट को उन पे कोई ना कोई ऐसा ऑर्डर या ऐसा कानून इम्प्लीमेंट फॉरन लॉ बनाना चाहिए जिसके तहत ये सारी चीज़ें रोक की जा सके.
isn't it the law now? एक law तो है भी जहाँ पे countries are under the British law, European law, and United Nations, any country which is supporting or promoting promote terrorism, बिल्कुल लॉ तो है they लेकिन need to be dealt with, and they are dealing with these countries very much with sanctions. लॉ तो है लेकिन वो फोर्सली उस पे इम्प्लीमेंट नहीं करवा नहीं हो पा रहा रही है. So did you know? Yeah. I mean, there is double standards, you know, and you look at the news and they're doing trade deals with these so-called countries where... Let's say, for example, like Saudi Arabia, for example, Yeah. Britain's got a very good dealing going on with them. Yeah. And on the other hand, they're fully aware about some of the people following that kind of sect and understanding some of the issues that are related to that. Yes, yes, definitely. It's their form of Islam. And I mean, they definitely they are encouraging that form of Islam, which is extremism. Rashid Saab, extremism supported by these Saudis. What's going on? इसके पीछे से तो मैं इस पे इतनी ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा. इसके पीछे बहुत बड़ा, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ये मुसलमान ग्रुप नहीं है. इसके पीछे एक यहूदी ग्रुप है जिसके तहत ये सारी जो सुसाइड के जो भी इंसिडेंट हुए हैं उनकी वजह से हो रहे हैं, उनकी वजह से ही ब्रेन वॉश हो रहा है, जिसकी वजह से पूरी वर्ल्ड का जो माहौल ख़राब हो चुका है. तो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी को इस पे गौर करना चाहिए. जो इस्लामी फोबिया को एक प्रैक्टिकल मज़ारे के ज़रिए इसको दूर किया जा सकता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बरतानिया में रह रहे, बरतानिया में डेमोक्रेसी है, मजहबी आज़ादी है, जिस तरह बड़ी ईद आ रही है जी. तो बड़ी ईद हमारी कम्युनिटी लीडर को कोई स्लाटर हाउस बनाने चाहिए ताकि जहाँ पे मुस्लिम और गैर मुस्लिम हमारी जो सुन्नत है इब्राहिम को देख सके और उनके अंदर जो फोबिया या जो फियर है वो ख़त्म हो सके. जी, जिसको नहीं, आपने कुछ जो मेंशन करा था, obviously you need to back up with some evidence collaboration. तो चले वो allegedly आपने जो कही. So Ali Raza, let's just move on to yours. आपसे मैं कह रहा था, देखें, in terms of the Muslim community, is what they're involved in crimes and big issues related to the breakup of the communities. Right? So how we need to engage the youth in a proper way so they don't get into crime. It's about better training, education. Definitely education. The problem we have in society is that people want easy money and fast money. So that's when people turn towards crime. So what do you think is that the kids have got nothing to do, or what? I think with certain Asian families as well, which we're having as, you know, we're having one parent families, dysfunctional families, and that's when it comes about. That's when crime with the younger generation is coming about. They are more susceptible when you have to break up of the family. What happens in a situation where the crime bit, the fraud bits come in, whereas whether you're a single or you're in both parents, but the crime element is still there. I mean, the large significant number of people are actually coming from a good family background who've been involved with fraud. They're doing their like credit cards fraud and all sorts of fraud being going on, and there has been an increase in there, and other kind of crimes involved, like cash for crash. That was another one. Okay. And a big scams they were doing that to easy money, like you mentioned. Why is this that the money? Of course, but why do not see there is a proper job to be done, training? When we emphasize that as a community, as a family, families नहीं बता दी हैं बच्चों को इस तरह नहीं करना चाहिए. Like I said before, the problem we have is the society we have is everything's about money, and the easiest way you can get money, that's what people are doing. And even if it involves crime, they will do it. Even if it's breaking the law, they will do it. They'll take the chances because they look at the end goal, which is to make money. So ऐसा अगर बच्चों को ये सिर्फ पैसे बनाना by any means, so education really doesn't matter, whichever way. बिल्कुल, आप पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये जो मैनचेस्टर में इंसिडेंट हुआ वो एजुकेटेड गाय था. एजुकेशन के साथ हमारी जो तरबियत है, माँ बाप को
अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए, उनको प्रैक्टिकल बताना चाहिए कि कौन सी चीज़ें उनके लिए सही हैं और कौन सी चीज़ें उनके लिए गलत है। मनी तो यहाँ पे तो यूके में तो ये सारे यंगस्टर मनी तो इजीली बना सकते हैं अगर वो एजुकेटेड है। वो डिफरेंट फील्ड्स हैं, बड़े डिफरेंट बिजनेस हैं, डिफरेंट प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे, जिसकी वजह से यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो सबसे बड़ी ज़्यादा है कि माँ बाप अपने बच्चों को तवज्जो नहीं दे रहे, जिसकी वजह से ये मसाइल पैदा हो रहे हैं। ठीक, सबसे बड़ी वजह पेरेंट्स। I would say to you, the youngsters of today, they live two different lives. One is the way they live, how they behave towards the family life, towards their parents, and how they behave outside the family life. Right. Now they could be portraying themselves as good children, as you know, that they study or they go out there, they're looking for a job and everything like that. And when they go out of the house, they'll be drinking alcohol, smoking weed, and just doing all the bad things. So this is a big problem at the moment. I There's an say so. increase. I would definitely. And this say is so. endemic throughout the country. It doesn't affect Manchester. It is all over the country. I would definitely say though, hanging around in certain gangs and just. The gang culture बन रहा है. This is too much going on. I would say so. Yeah. Is that role models? उनके role models अभी यही तो मैंने कर रहे थे parents. गैंग जो कल्चर बना है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे कम्युनिटी लीडर हैं, क्योंकि उनके पास कोई इंटरटेनमेंट के लिए कोई जगह नहीं है कि वो अपना टाइम पास कर सकें। तो इसलिए उनको वो ऐसी कंपनीज को शेयर करना पड़ता है, जिसकी वजह से उसका टाइम अच्छा गुजरता है। तो लिहाजा हमारे कम्युनिटी लीडर को चाहिए कोई फुटबॉल ग्राउंड्स बनाए, कोई क्लब्स बनाए, ताकि जो माँ बाप के अलावा जो उनके पास टाइम बचता है वो वहाँ पे इजीली गुजार सके, ताकि उनमें कोई बैड हैबिट ना आए। तो आपको बताएं यहाँ पे स्पोर्ट्स सेंटर्स भी हैं यहाँ पे। आपने कम्युनिटी स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है, स्पोर्ट्स सेंटर हैं तो वो कॉमन है सबके लिए। वो अपने कम्युनिटी सेंटर हो जिसमें अपने ही लोग, अपनी इस्लामी कम्युनिटी इकट्ठी हो, कोई टूर्नामेंट करवाया जाए, लोगों को कर्ज दी जाए, उनको अपनी तरफ मदद किया जाए। डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ होते रहे थ्रू आउट अभी सीजन में बिल्कुल चलते रहते हैं, ऑन एंड ऑफ बेसिस टूर्नामेंट्स। क्रिकेट का होता है, आपको नहीं देखा, ये तो सीजनल होते हैं सारे, मैं कह रहा हूँ परमानेंट जो हो ये सीजनल होते हैं। कोई चैरिटी डिनर करवा रहा है, कोई चैरिटी गेम करवा रहा है, उसकी बेस पे कोई अभी एशियन साउंड वाले इन्होंने मैच करवाया है, ठीक है। तो इस तरह के तो होते रहते हैं। जो हमारे कम्युनिटी लीडर को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, उसके लिए उनके पास फंड भी होना चाहिए, जो कि आप पार्लियामेंट से ले सकते हैं, कौंसिल से ले सकते हैं। चलिए आपसे बात करूँगा, कॉल और शामिल करते हैं। वेलकम टू आवर लीगल पॉलिटिकल शो। कौन कहाँ से? जी, वेलकम टू द प्रोग्राम मज़र साहब। आप अपना क्वेश्चन बताएंगे, आप इसमें शेयर करना चाहते हैं डिबेट में? जी, मैं इस डिबेट में शेयर करना चाह रहा हूँ जी कि आपके मौजू के मुताबिक रिसेंटली जो नीदरलैंड के अंदर एक रिपोर्ट आई है कि व्हाट्स द प्रॉब्लम इन द चिल्ड्रन, जी टू मच स्ट्रीट क्राइम, education lacks, and then one of the reasons there was separation. There was a big problem our Asian and also European community over there. इसकी जो सिनेरियो के अंदर उन्होंने कहा है कि सेपरेशन जो है ये हमारी जो एक फ्रीडम का एक हिस्सा है कंप्लीट, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इसके साइड इफेक्ट जो है कि चिल्ड्रन डिस्टर्बेंस हो रही है, उसमें आज एजुकेशन का उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनको स्ट्रीट क्राइम में उसको उनका इजाफा हो रहा है, उसके अंदर डिप्रेशन, उसके अंदर खुदकशी। फिर उसके अंदर इस रिपोर्ट को आगे भी किया गया है कि जो पेरेंट्स जो वर्क करते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चिल्ड्रन के साथ कम्युनिकेशन कर सके, उनके साथ डिस्कस करें। उसके बाद आपको जो है सबसे प्रॉब्लम यह है कि डे केयर सेंटर के अंदर बच्चा छोटी उम्र का होता है, उसको चाहिए कि कम्युनिकेशन की जरूरत है, माँ बाप की जरूरत है, एक तरबियत की जरूरत होती है। और 8 घंटे बाहर आने के बाद फिर आप वालिदैन जो हैं घर में आते हैं तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि बच्चे के साथ कम्युनिकेशन करें, साथ डिस्कशन करें। तो ये क्लैश जो है ये
जिस स्पेस बढ़ता बढ़ता जा रहा है उसकी शख्सियत जो है ग्रोथ नहीं हो रही, और ये इफेक्ट जो है इवन देन आपने रिसर्च किया कि ये बुढ़ापे तक रहते हैं इनके किसी लिए। फिर उसके बाद इन वालिदैन के पास इतना टाइम नहीं होता कि कुकिंग कर सके। फिर उसकी रिसर्च रिपोर्ट में है कि जो बॉयल आप सब्जियां और फ्रूट खाते हैं उसके अंदर साइड इफेक्ट जो है आपको आपके बच्चे के अंदर होते हैं। तो क्योंकि ज्यादातर लोगों की बच्चों की खुदकशी, डिप्रेशन इसी की अलामत है। ये सारे चीजें जो है एड्रेस करने की जरूरत है। तो उसके बाद जो है इंग्लैंड के अंदर तो 5-6 दहाइयों से लोग आए थे। पहले तो उनके पास टाइम नहीं था, अब तो ग्रास रूट से लेकर हाई ऑफिशियल तक लोगों के पास वसाइल है, सब कुछ है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी पास चाहे यूरोपियन कल्चर कैसा भी है, उसकी वैल्यू कैसा है, लेकिन अपनी वैल्यू के मुताबिक बच्चों के साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है, आपने उसके पास डिस्कस करनी है। मैं रिसेंटली आप ही के प्रोग्राम में मैं डिस्कस कर रहा था मंडे वाले दिन। यानी कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है यहाँ पर मैंने इंग्लैंड में अपने एनर्जी रिसर्च देखा है, इवन नीदरलैंड में भी देखा है। लोग जो है 40-40 साल से रह रहे हैं, दे नॉट रीड, दे नॉट स्पीक इन लैंग्वेज। That's one of the problem. Other than jobless people, they depend to the not to education, they depend to the allowances and other things. Sure. That's a big problem. Because आपको पास अगर लैंग्वेज हो तो अपने आप राइट को डिफेंस कर सकते हैं, आप इसको रियलाइज कर सकते हैं। आप बच्चों को भी बेहतर एजुकेशन के लिए डिफरेंट काउंसलर्स के साथ आप जा सकते हैं, डिफरेंट इदारों के साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, टीचर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और दूसरा है कि यहाँ पर जो जॉब ना करने की वजह से लो प्रॉपर्टी जो सोसाइटी है हमारी, उसके अंदर ये ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं कि उनके पास आपके पास अगर वसाइल ना हो तो ये भी सारे सोशल इफेक्ट जो है आपकी सोसाइटी आपके बच्चों पे पड़ते हैं। तो ये सारी चीजें जो है अब मैंने इंग्लैंड में एक और चीज देखा है कि यहाँ पर बरादरी तकबात और लसूनी और नजरियाती किस्म के रिलीजियस किस्म के ग्रुप है, वो ओवरऑल इस चीजों को एड्रेस नहीं करते। वो जो है कि अपनी इन चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये एक पूरा एक सिनेरियो है, एक जिसके अंदर एक मैकेनिज्म बना के आप इसको चाइल्डहुड को, चाइल्ड जनरेशन को आप सेव कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल का, रियली अप्रिशिएट इट। अभी बड़ी अच्छी कॉल थी है, एंड बिग इश्यूज हैव बीन रेज्ड एंड एजुकेशन, लैंग्वेज, पैसों के चक्कर में। आई थिंक रियली अली रज़ा ये टॉपिक जो अभी कॉल आई थी बिल्कुल सही गया आपने। कॉल जो आई थी जनाब ने फोन चक्कर, आई थिंक कॉल फ्रॉम नेदरलैंड्स, हॉलैंड, एंड ही इज क्वाइट राइट अबाउट द फेलियर्स बाय द कम्युनिटी। जो हमारे पेरेंट्स हैं अबैंडन देयर चिल्ड्रन and not giving them time and not developing them. उसके अलावा जहाँ पे आप ये देख रहे हैं एजुकेशन जो फेलियर्स और लैंग्वेज जो उन्होंने मेंशन किया, there is something we will talk about. If you जिनको लैंग्वेज नहीं आ रही है तो how can I integrate? आप what do you think of that? With him mentioning about the parents not giving the time, I think if you look at a lot of the English, the European parents, they devote time to their children, whatever sport. For example, if they're interested in a sport, yes, they're interested in a sport, they'll give the time for them to be better, to improve in that sport. They will give them time if it comes to education. They will give them a personal trainer. I don't think in our society we don't give as much emphasis on our children. We don't have time, and that's a major problem. So then we have the problems with the children turning out to be delinquent and turning into crime and things like that. Right साहब, बहुत अच्छी जवाब दिया अपने अली रज़ा साहब ने। तो ये जो इश्यूज हैं टाइम नहीं देने की वजह से, and second of all failure by the parental। जी बिल्कुल मैं एग्री हूँ मगर जावेद के साथ भी और अली रज़ा के साथ भी। इंग्लैंड में यही सबसे बड़ी रीज़न है, सबसे पहली रीज़न है डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले प्रोग्राम में। और डोमेस्टिक वायलेंस से सेपरेशन आती है, सेपरेशन से बच्चे को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता, ना ही माँ बाप उसको अच्छी तरह से समझा सकते, जिसकी वजह से बच्चा जो बाहर की कम्युनिटी है उसको अडॉप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से वो अपनी कल्चर और अपना सब कुछ भूल के एक दूसरे कल्चर को अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। और वो
तो वो एक मसाला ये कि हमारे जिससे ना हमारी जो फैमिलीज हैं उनको अपने कल्चर नहीं बताते, ऑफ कोर्स वो कल्चर डिलीवरी का एक तरीका कार होता है, एक प्रोसीजर होता है। देखिए मेरे साथ अगर बच्चे हैं तो मैं सुबह फजर की नमाज पढ़ता हूँ, तो ये मेरी डिलीवरी है, मैं उनके सामने नमाज पढ़ता हूँ, उनको भी पता चलेगा कि मेरे वालिदैन कैसे नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद जाते हैं, फ्यूनरल में जाते हैं, ख़त्म पे जाते हैं या कोई सोशल विजिट करते हैं, तो फिर उनकी वजह से ये सारा कुछ उनके माइंड में ट्रांसफ़र होता है, जो कि अनफॉर्चुनेटली कुछ सारे तो नहीं कह सकता, 50% लोग ऐसा करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो ये आपसे डिस्कस करेंगे। अभी हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं अली साहब, अभी वापस आएंगे। अपने मस्जिद जावेद साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी अबाउट सम ऑफ द इश्यूज अफेक्टिंग द कम्युनिटीज, जो जहाँ पे एजुकेशन ना, जहाँ पे लैक ऑफ पेरेंटल गाइडेंस उन्हें मिल रही, इस पर हम थोड़ा सा बात करेंगे अभी प्रोग्राम के ब्रेक के बाद। एंड ऑल्सो सम लीगल इश्यूज पे भी डिस्कस करते हैं, तो आते हैं भी इन अ मोमेंट विद अ फ्यू मिनट्स ब्रेक।